But they are going to serve the meal. The man says, Henry, if she wants out, let her out. She is only a child. तो जो हेनरी है वो उसको बोलता है कि अभी खाना सर्व होने जा रहा है, अभी आपको बाथरूम नहीं जाना चाहिए. देन हर वाइफ सेड कि अगर वो जाना चाहती है तो उसको जाने दो. शी इज़ ओनली अ चाइल्ड, कि वो एक चाइल्ड है. बट कैरोल इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है और वो अपने मन में बोलती है कि मैं डेफिनेटली, आई एम नॉट डेफिनेटली अ चाइल्ड. नाउ वंस इन द आइसल, कैरोल realizes she has forgotten Amy. Then she went to bathroom and realizes that she has forgotten Amy, her doll there. Henry Norton hands her the doll. Henry Norton उसको डॉल देते हैं उसकी. There you go and don't fall out of the plane now. There is a big hole down by the toilet. Now Henry Norton said her that don't fall out of the plane, कि प्लेन से बाहर मत गिर जाना, because there is a big hole in the toilet, क्योंकि एक टॉयलेट में एक बड़ा सा हॉल है. वो it's like it's just looking that they are making to fun at her. वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. There is not, Carol says, there is not any such things. She heads down the aisle with an eye out just in case there is a hole after all. Coming out of the toilet, Carol finds the stewardess. Excuse me, miss, could I sit somewhere else? After coming to the toilet, Carol stewardess को find out करती हैं और उनको बोलती हैं, Can I sit somewhere else? क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ? The woman frowns. Why? I don't like the window. Is that the only reason? Well, yes. वो उसको पूछती है कि आप क्यों नहीं बैठना चाहती वहाँ पर. वो उसको बोलती है कि I don't like the window, मैं विंडो को नहीं पसंद करती. I am sorry but we don't have time to move you now. We're serving a meal. Ask me later if you like. अभी हम कुछ नहीं कर सकते because we are serving the meal. You can ask me later. आप मुझसे बाद में पूछ सकती हैं. After Carol has eaten and had her tray taken, the man says, What are you anyway? My wife and I were wondering. जब खाना कंप्लीट हो जाता है उन लोगों का, then Henry and Betty ask her, What are you anyway? My wife and I were wondering. My wife, मेरी वाइफ और मैं बहुत ही सरप्राइज हैं ये जानने के लिए, क्यूरियस है ये जानने के लिए, What are you anyway? कि तुम क्या हो, कौन हो. Carol blinks, sees the man's clear blue eyes and drops her head. What do you mean? She says. Carol अपनी eyes blink करती है. She could not understand what they are asking to her. वो समझ नहीं पाती है कि वो लोग उसको क्या पूछना चाह रहे हैं. You know, what are you? You know, what are you? What race? वो उसको पूछते हैं कि what are you? What race? क्या तुम रेस हो? Carol mouth drop. Race? What is that? She doesn't understand. Yet she senses that the man is asking a bad question. She wishes her mom and dad were there. They could tell what race meant. कैरोल समझ नहीं पाती है कि वो लोग उसको कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो ये सोचती है कि अगर मॉम एंड डैड यहाँ होते हैं तो वो मुझे समझा पाते कि what is meant by race. That doll of yours is black? And Norton says that is a Negro doll. Now the man is asking her another question. He was trying to tell her about the race through examples. Then he tell her that doll of yours is black, कि तुम्हारी doll black है. Henry Norton says that is a Negro doll. Negro means
इज़ एन ओल्ड फैशनड एंड ऑफेंसिव वर्ड फॉर अ ब्लैक पर्सन, जो कि ब्लैक पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है। नीग्रो वर्ड, उनको नीग्रो बोलते हैं। ओके, सो वो आपकी डॉल ब्लैक है, दिस इज़ नीग्रो, ये नीग्रो है। दैट्स रेस नीग्रो। व्हाट्स योर रेस? रेस मीन्स कलर, इसका ये नीग्रो है, इसके कलर के अकॉर्डिंग ये नीग्रो है। व्हाट्स योर रेस? तुम कौन हो? द क्वेश्चन स्टिल कन्फ्यूजेज हर। पुट इट दिस वे, द मैन सेज व्हाट इज़ योर फादर। अभी भी उसको क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करता है कैरोल को। देन मैन आस्क्स हर अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फादर? तुम्हारे फादर क्या है? द क्वेश्चन बेफल्स हर। उसको फिर से वो क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करता है। शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू आस्क हर। ही इज़ हर डैड, वो बोलती है उसको ही इज़ माई डैड, वो मेरे डैड है। ही इज़ हर डैड एंड एवरी संडे मॉर्निंग ही मेक्स पेनकेक्स फॉर द होल फैमिली एंड लेट्स कैरोल पोर hot syrup on them and afterwards he tells the stories। उसको बोलती है कि मेरे डैड है और वो हर एवरी संडे हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं एंड मुझको स्टोरीज़ भी सुनाते हैं। नॉर्टन लीन्स टूवर्ड्स कैरोल। से यू हैड अ कलरिंग बुक, व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड? देन ही आस्क्ड हर डू यू हैव कलरिंग बुक, क्या तुम्हारे पास कलरिंग बुक है? तुम अपने डैड को कौन सा कलर देना चाहोगी? आई नेवर यूज जस्ट वन कलर। ओके, व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस? देन ही आस्क्ड कि शी रिप्लाइड कि मैं कोई एक कलर यूज़ नहीं करती हूँ हमेशा कलरिंग में, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ। द मैन आस्क्ड हर कि तुम अपने फादर को कौन सा कलर देना चाहोगी, अपने फादर के फेस को कौन सा कलर देना चाहोगी? देन शी रिप्लाइड ब्राउन, मैं उनके फेस को ब्राउन कलर दूंगी। एंड योर मदर, और तुम अपनी मदर को कौन सा कलर दोगी? कैरोल इमेजिन्स अ ब्लैंक पेज। व्हाट वुड शी पुट इन हर मदर्स फेस? शी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर, शी कांट लीव इट ब्लैंक। आई डोंट नो। देन ही आस्क्ड कि तुम अपनी मदर को कौन सा कलर दोगी, क्या तुम उनका पेज ब्लैंक छोड़ दोगी? आई डोंट नो, शी रिप्लाइड श्योर यू डू। मिसेस नॉर्टन सेज हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस, कि तुम अपने मदर को कौन सा कलर दोगी? येलो। शी रिप्लाइड येलो, कि मैं अपनी मदर को येलो कलर दूंगी बिकॉज कैरोल्स मदर हैज़ फेयर कलर, so she will color her face yellow. Carol sees Mr. and Mrs. Norton looked at each other. Is your mother Chinese? Mrs. Norton asked. No. Are you sure? You would color her yellow? No. What else might you color her? What else? Carol feels ashamed at her stupidity. A tear races down her cheek, red. She says, finally. Now वो उनको बताती है कि मैं उनको येलो कलर दूंगी। तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं क्या तुम्हारी मदर, वो दोनों एक दूसरे को सरप्राइजली देखते हैं कि क्या तुम्हारी मदर चाइनीज़ है, बिकॉज चाइनीज़ ही फेयर कलर होता है चाइनीज़ का। तो उसको बोलती है नो नो, माई मदर इज़ नॉट चाइनीज़। तो फिर तुम उनको कौन सा कलर दोगी? देन शी रिप्लाइड, वो काफ़ी स्टुपिडिटी फील करती है, फिर उनको बताती है कि मैं उनको रेड कलर भी दूंगी। रेड, यू कांट कलर अ फेस रेड, कि तुम एक फेस को रेड नहीं दे सकती। इज़ योर मदर वाइट? इज़ शी लाइक मी? मीन क्या तुम एक फेस को वाइट और रेड कलर दोगी? मीन इज़ शी लाइक मी? जिनका फेस वाइट होता है कभी कभी उनके फेस पर थोड़ा सा उनका कलर पिंकिश होता है, मीन उनका फेस वाइट मिक्स पिंक होता है, मीन्स थोड़ा पिंकिश होता है, ठीक। हर फेस इज़ इट द सेम कलर एज माइन, वो उसको पूछता है कि उनका कलर भी मेरे जैसा है जैसा मेरा है। देन शी रिप्लाइड येस एंड योर फादर्स ब्राउन, और तुम्हारे फादर का कलर ब्राउन है। कैरोल नोट्स, कैरोल अपना सर हिलाती है। व्हेन यू से ब्राउन डू यू मीन ही इज़ अ नीग्रो? मीन ही हैज़ ब्राउन कलर, मीन ही इज़ अ नीग्रो? येस ऑफ कोर्स हर फादर इज़ अ नीग्रो।
if Mrs. Martin wanted to know all along if her dad was a Negro? Why didn't she just ask? So you are mixed. Mrs. Norton says you are a mulatto. अब वो उसको पूछना चाहते हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि उसका फादर नीग्रो है, उसकी मदर अदर कास्ट से बिलोंग करती है, तो वो उसको ये पूछना चाहते हैं. एंड देन शी सेड, मिसेस नॉर्टन सेज दैट यू आर अ मुलाटो. मुलाटो मीनिंग हियर एक ऐसा वर्ड, ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं समवन विद वन ब्लैक पेरेंट एंड वन वाइट पेरेंट. मीन जब किसी के पेरेंट्स का कलर उसके पेरेंट्स में उसकी मदर का कलर वाइट हो, या फिर फादर का ब्लैक हो, या फिर फादर का कलर वाइट हो, या फिर मदर का ब्लैक हो, तो इट्स कॉल्ड मुलाटो. जब उस मीन शी आस्क्ड हर दैट यू आर मिक्स्ड. कैरोल्स लिप क्यूवर्स. कैरोल्स बहुत ही अपसेट हो जाती है. व्हाट इज़ अ मुलाटो? शी डिड नॉट नो अबाउट दैट. वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी. वाई डू दे कीप आस्किंग हर व्हाट शी इजंट एनीथिंग. सो इज दैट इट? यू आर अ मुलाटो. यू नो व्हाट अ मुलाटो इज, डोंट यू? हैवंट योर पेरेंट्स टोल्ड यू दैट वर्ड? वो उसको पूछते हैं, वो उसको टीस करते हैं कि तुम मुलाटो के बारे में नहीं जानती क्या? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुलाटो के बारे में नहीं बताया? Approaching with a cart of juice, the stewardess looked up and smiles at Carol that gives her a rush of courage. Then स्टूवर्ड उसके पास आती हैं और वो कैरोल को स्माइल करती हैं, तो कैरोल को थोड़ा सा करेज आ जाता है. बिकॉज नाउ शी इज़ नॉट अलोन. वो अपने आप को अकेला नहीं समझती अब जब वो हॉस्टेस को देखती है. देन शी रिप्लाइड, Leave me alone. She screams at Mrs. Norton. वो अब शाउट करती है, Leave me alone. मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो. Passengers stare. The stewardess spill her drink. Mrs. Norton sits back hard in her seat, her hands raised, fingers spread. Carol sees people watching. जब वो ऐसा बोलती है तो पैसेंजर्स पीछे को मुड़ कर देखने लगते हैं, सब उसी साइड देखते हैं. और मिसेस नॉर्टन जो है वो अपनी सीट पर एकदम फिक्स हो जाती हैं, ऐसे ही बैठी रह जाती हैं. शॉकिंगली, वाई डू यू कीप आस्किंग मी इफ माई डैड इज़ नीग्रो? नाउ कैरोल इज़ आंसरिंग. कैरोल अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आंसर करती है, वाई डू यू कीप आस्किंग मी इफ़ माई डैड इज़ नीग्रो? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी डैड नीग्रो हैं? येस ही इज़ अ नीग्रो. ओके नीग्रो. वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो उनको बताती है, येस ही इज़ अ नीग्रो. काम डाउन, मिसेस नॉर्टन सेज, रीचिंग ओवर. डोंट टच हर, द स्टूवर्डेस सेज. मिसेस नॉर्टन उसको काम डाउन करती हैं. देन स्टूवर्डेस सेज, डोंट टच हर, उसको टच मत करो. हु आर दीज पीपल? समवन सेज फ्रॉम अक्रॉस द आइसल. Imagine talking to a child like that. And in 1970, someone is saying, जो आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये कौन है जो एक चाइल्ड से ऐसे बात कर रहे हैं. Just like they are in 1970. Mean here, students, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वी ऑल्सो फाइंड आउट कि किस तरीके से लोगों में जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के रेसेस हैं, दैट इज़ अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, उन्हें पहले स्लेव्स बनाकर रखा जाता था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इन दीज अफ्रीकन अमेरिकन्स वर यूज्ड एज स्लेव्स इन अमेरिका एंड दे वर फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी. मीन उन्हें पहले जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते थे उनको पहले स्लेव गुलाम बना करके रखा जाता था. बट इन 1865 दे फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी. उनको स्लेवरी से आज़ाद किया गया, आज़ादी मिली क्योंकि
वहाँ एक एक्ट जारी किया गया कि जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। फिर भी लोग उन्हें बराबर का दर्जा नहीं देते थे। और आगे आने वाले समय में इन 1940s, इन 1950s इस चीज़ पर लोगों ने काफ़ी वर्क किया और बहुत चेंजेस भी आए अमेरिका में। इवन इन 1970s पीपल मिसट्रीटिंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर एंड रेस। विन धीरे धीरे चेंज हुआ, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी भेदभाव करते थे। सो स्टीवर्डेस समझ जाती है कि जो कैरोल है वो काफ़ी वो अनकंफर्टेबल है विद दोस पीपल। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। सो शी आस्क हर टू सिट विद हर। वो उसको सजेस्ट करती है कि वो उसके साथ बैठे। वन वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैरोल स्टैंड्स अप एंड टर्न्स अराउंड। वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी लिटिल गर्ल? No, Carol shouts. I don't like all these questions. She keeps asking me how I would color my parents in a coloring book. Why do you keep asking me that? Mrs. Norton pleads with Carol to stop. How would you like it if that happened to you? Carol says. So what are you anyway? What are your parents? How would you color them? Well, I don't care. I don't even care. How would you like to come and sit with me? The stewardess says, smiling. I will make you a special drink. Have you ever had a Shirley Temple? Now जो कैरोल है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो शाउट करने लगती हैं उन दोनों हस्बैंड वाइफ पर कि आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि मैं अपने फादर को कैसा कलर करूँगी। हाउ कैन यू आस्क मी सच दीज क्वेश्चन। मिसिज नॉर्टन उसको चुप करती हैं, बट शी डिड नॉट स्टॉप। वो उसको बोलती हैं, मिसिज नॉर्टन को बोलती हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो, आपसे कोई ऐसे पूछे तो आप कैसा फील करेंगी। एंड शी आस्क्ड हर व्हाट आर यू एनीवे। आप क्या हैं, आप मुझे बताइए, आप क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या हैं, आप उनको कैसा कलर देंगी। मैं इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करती कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मैं कैसी हूँ। ओके, आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर। देन स्टीवर्डेस उसको सजेस्ट करती है कि स्माइलिंग सजेस्ट करती है कि वो आए और वो उसके पास बैठे। कैरोल नोट्स enthusiastically. Already she feels better. Clutching Amy, she passes by the Norton, who swings their legs to let her out. Now she is going to sit in another seat. Now she is feeling better. वो बेटर फील करती है और जो नॉर्टन्स हैं वो उसको अपनी लेग्स पीछे करते हैं और उसको बाहर जाने का रास्ता देते हैं। My God, Carol hears Mrs. Norton tell her husband. Talk about sensitives. Now the story is ended. Now I hope you all have understood about this story. The story is about the people that have thinking just like this. They partiality to each other on the basis of race, on the basis of their caste, etc., etc. So we should not do these things. We should avoid that. Okay, students, I hope you all have understood this story. Thank you.